differential equation. Before starting exact differential equation, let us do some introduction about the differential equation. So what is the differential equation? Can you tell me what is the differential equation? इसका definition क्या हो सकता है? Simply a equation which contain the differential coefficient is called a differential equation. Okay, differential coefficient means what? If y, suppose if y is any function, y is any function है, any function of suppose x. Okay, y is any function of x and derivative of y with respect to x is denoted by what? Y dash, or you can say dy by dx. ओके, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोल सकते हैं हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. Suppose x is the any displacement. X is, suppose this is the your way. ये पॉइंट सपोज ये पार्टिकल है, कोई एक पार्टिकल है, इसका नाम दे दो सपोज a, ठीक है, और ये पोजीशन कोई एक ए पोजीशन है, ठीक है. इस पार्टिकल को और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसका क्या है डिस्टेंस? इसका डिस्टेंस है सपोज x है, ठीक है. ये यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल को a से b जाने के लिए कितना टाइम लगता है? t लगता है, ठीक है. ये पूरा इतना यहाँ से इसका ये डिस्टेंस है, ठीक है. तो इसका रेट ऑफ चेंज मतलब कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम t लगता है उसको क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t. ये क्या है इसका? ये क्या है बताओ? ये तो पार्टिकल का क्या है? वेलोसिटी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. अगर इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या यूज है? What are the use of differential equation? There are so many applications of differential equation in engineering field. So it is used to find LR or LC circuit. It is used to find the moment of electricity, and it is also used to find the equation heat. It is also used to find the motion of the equation. आपने पढ़ा है, 12th में पढ़ा होगा, simple harmonic motion, acceleration, like that. Here, it is used to find in medicine. It can also be used in medicine field, like in medicine for modeling cancer growth or the spread of disease. Spread of disease, ये कोरोना वायरस में भी इसका यूज होता है. समझ में? किस स्पीड से ये ग्रोथ हो रहा है बैक्टीरिया डिजीज, उसको क्या बोलेंगे हम? स्प्रेड ऑफ डिजीज, growth of bacteria in the country. So it is also used in chemistry for modeling chemical reaction. Okay, so in real life also there are so many applications in real life. So in economics, to find optimum investment strategies, or in physics to describe the motion of waves, pendulum or joystick system. So there are so many applications you will study in engineering or real life also. तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और इसका क्या एप्लीकेशन आपको समझ में आए, ठीक है. सो हियर सिंपल डेफिनेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, sorry, an equation which contain the differential coefficient. So an equation which contain differential coefficient is called a differential equation. Is called a differential equation.
Okay, it is denoted by, say if y is the function of x, if y of x is a function of x, function of x, then y dash is called derivative of y with respect to x. ठीक है, तो what are the example of differential equation? Or an equation, or you can say an equation which contain a differential coefficient. What is the differential coefficient? Suppose a आपका क्या है, x and dy by dx plus 2 x square plus 2x square and this equal to 0. Okay, so is this differential equation? Yes. Why? Because this contain a differential coefficient dy by dx. Suppose a आपको मैं लिखता हूँ सेकेंड वाला, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? यस और नो? बोलो। नो सर। हाँ, नो, ये तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, सो दिस इज नो। ये क्या है, as। नंबर 3 मैं लेता हूँ, नंबर 3, सपोज ये आपका क्या दिया है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाय डी एक्स एंड प्लस वाई इक्वल टू सपोज c है। तो इज डिफरेंशियल इक्वेशन? यस यस, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, तो ये सभी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल एक दीज आर द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ओके, एंड व्हाट आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर मतलब क्या, बोलो? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन इट। मतलब इसमें देखो, एक कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है? 2 ऑर्डर का है, सेकेंड है, क्योंकि इसका हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं, इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 है, तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और ये कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, बोलो? 1 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्डर और एंड व्हाट आर द डिग्री? दिस इज द ऑर्डर एंड व्हाट आर द डिग्री? एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम द रेडिकल। ये इक्वेशन है, उसमें रेडिकल नहीं होना चाहिए। रेडिकल मतलब क्या? जैसे कि 1/2 हो गया, 3/5, मतलब कि बाय में कोई भी पावर नहीं होना चाहिए। जैसे कि एंड व्हाट आर द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? हर एक की डिग्री कितनी है, बताओ? हर एक की डिग्री कितना है? 1 है, क्योंकि देखो इसका ऑर्डर कितना होगा मैं बता रहा हूँ। ऑर्डर इक्वल टू व्हाट? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 एंड व्हाट इज द डिग्री? डिग्री कितना है? फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए, मतलब जिसका पावर 1/2, 3/4, 5/7 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो उससे फ्री होगा तो उसका ऑर्डर कितना होगा? देखो इसमें ये ऑर्डर उसका फ्री है, ठीक है, फ्री फ्रॉम द क्या बोलते हैं, रेडिकल है, तो इसका ऑर्डर डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको क्या मिलेगा? ये भी एस है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर इज व्हाट? कितने ऑर्डर का इक्वेशन है ये? 1 और डिग्री कितना मिलेगा इसका? 1। डिग्री भी इसका 1 ही है। ठीक है, सपोज आपको नंबर 3 में देता हूं, ऐसा है, dy बाय dx प्लस 1 इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? सपोज यहाँ पे हम इक्वल टू y ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर और डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे? सपोज इसका मैं ऐसा ले लिया, ये सपोज सेकेंड ऑर्डर का है। ठीक है, तो इसका फ्री फ्रॉम द रेडिकल होना चाहिए, तो इसका मैं क्या करूँगा,
इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू सॉल्व दिस। इसका स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो रूट क्या है, हट जाएगा। क्या मिलेगा आपको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और सपोज मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ, यहाँ पे है 3/2, ठीक है। तो 3/2 एंड प्लस 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर का रूट हट जाएगा। यहाँ पे तो कभी रेडिकल है, रेडिकल मतलब क्या है आपका 3/2 है, ठीक है। तो 3/2 ये 2 हटाना पड़ेगा, इसका फ्री फ्रॉम रेडिकल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सो दिस इम्प्लाइज दैट मैं टेकिंग पावर 2 ऑन बोथ साइड करूँगा, ठीक है। तो आपका पावर, इसको पहले मैं उस साइड लेके जाऊँगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड द पावर इज वॉट 3/2 एंड दिस इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1, वाई स्क्वायर माइनस 1 हो गया। सो नेक्स्ट पेज पे पहले हम जाएंगे, तो इसको मैं थोड़ा पहले फिर लिखता हूँ। सो दिस इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड 3/2 एंड दिस इक्वल टू वॉट वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे 3/2 है, नीचे 1/2 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग करो ऑन बोथ साइड। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 3/2 एंड दिस इक्वल टू वॉट वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 इधर जाएगा तो ये आपको क्या मिलेगा, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर 3, ठीक है। ये तो ऐसे चलेगा, इससे कुछ मतलब नहीं है, डी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके। तो इसकी ऑर्डर कितना हो गया, इसको अब अच्छे से अगर लिखना चाहेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर 3 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू 0, ठीक है। सो व्हाट आर द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी डिग्री देखो कितना है, डिग्री 3, ऑर्डर 2। हाँ, डिग्री इसका मिलेगा 3 मिलेगा, ऑर्डर इसका 2 मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्डर इक्वल टू 2 एंड डिग्री इज व्हाट, दिस इज ऑर्डर अंदर का देखेंगे, ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इक्वल टू हाउ मच 3। तो इस तरह से ऑर्डर और डिग्री इसका डिफाइन कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आर देयर? देयर आर so many types of differential equation. First one is what, ordinary differential equation. Second one आपको क्या मिलेगा, a differential equation with constant coefficient. And third one, a differential equation with variable coefficient. Next one is what, partial differential equation, ठीक है। ordinary differential equation in short form में लिखता हूँ। What are the ordinary differential equation? A differential equation of the form, a differential equation of the form f। f क्या है आपका फंक्शन, किसके फॉर्म में, x y और y डैश, और यू कैन से dy/dx एंड दिस इक्वल टू व्हाट 0। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें उसका ऑर्डर भी 1 हो और डिग्री भी कितना हो, 1 हो। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड
ordinary differential equation. Okay, or next one, a differential equation with constant coefficient. A differential equation with, इसका एग्जांपल मैं दे दूं आपको, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा होता है, dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 0, एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट वन, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट. कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसका कोएफिशिएंट क्या हो, कांस्टेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे कि मैं आपको लिख के देता हूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy by dx and plus y and this equal to 0. एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, बोलो. This is the differential equation with constant coefficient. Why is this so? Because their coefficients are constant. Here coefficient क्या है, 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 1 है, एक constant coefficient हो गया. ठीक है. And next type of differential equation, that is what, differential equation with variable coefficient. Variable coefficient. What are the differential equation? So x square dx square y upon dx square plus 2x dy by dx and plus y equal to 0. एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट. इसका कोएफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर, दैट इज द वेरिएबल. इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2x, मतलब x भी है, यहाँ पे वेरिएबल है. दीज आर द डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट. इसके कोएफिशिएंट क्या हो सकते हैं, वेरिएबल या तो कांस्टेंट हो सकते हैं. ठीक है. एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. दैट इज व्हाट, partial differential equation. What are the partial differential equation? Dou square u upon dou x square, ठीक है, and plus dou square u upon dou y square and this equal to 0. So this is the partial differential equation, or you can say like this, dou square f upon dou x square and this equal to what, c square and dou f by dou f by dou t. ये किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है, बताओ. These are the partial differential equation. Okay. Now what are the solution or differential equation? Solution or differential equation. A solution or differential equation is a relation between the dependent and independent variable and free from derivative which satisfy the differential equation. That is called what, solution or differential equation. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, solution of differential equation. So solution of differential equation, solution of differential equation, or solution of differential equation is a relation, between the dependent and independent variable, between the dependent and independent variable.
independent variables and free from derivative and free from derivatives, जिसमें डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। विच सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, विच satisfies the differential equation। इसका मीनिंग समझ में आया? A solution or you can say primitive or integral of differential equation is a relation between the dependent and independent variable and free from derivative which satisfy the differential equation। मतलब क्या कि ऐसा फंक्शन को सॉल्यूशन बोलेंगे जिसमें आपका डेरिवेटिव नहीं होगा और वो फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और नेक्स्ट एक बार रिपीट करो। हाँ, इसके लिए मैं देखो आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके, एंड दिस इक्वल टू 0 सपोज है, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन कौन सा होगा इक्वेशन? अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा? डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको वापस इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? y इक्वल टू यहाँ पे c1 x हो जाएगा और प्लस c2 नेक्स्ट कांस्टेंट जुड़ जाएगा, ठीक है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया और ये इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अभी देखो पढ़ो। A solution of differential equation is a relation between the dependent and independent variable। यहाँ पे y is the dependent variable and x is the independent variable, ठीक है। and free from the derivative, इसमें डेरिवेटिव है नहीं है, and which satisfy the differential equation। इसको डबल बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 मिल जाएगा, तो ये सेटिस्फाई कर ये फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ठीक है। तो y क्या है? इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको नंबर 1 डाल दो, डिफरेंशियल इक्वेशन 1, ठीक है। समझ में आया ये आपको? ठीक है। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल, सॉरी क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन और यू कैन से पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, particular solution। A particular solution is obtained from the general solution by assigning particular value to the arbitrary constant। मतलब क्या? A particular solution मैं लिखता हूं, a particular solution is obtained from the general solution by assigning particular values to the arbitrary constant, ठीक है। देखो आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो C1 और C2 क्या है आपका? ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू देके मैं आर्बिट्री कांस्टेंट को निकाल देता हूँ तो जो सोल्यूशन मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम? पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो अ पर्टिकुलर सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन कैसा है? विच इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन, which is called a general solution।
विच इज कॉल्ड अ जनरल सोल्यूशन। एक ऐसा सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है विच इज कॉल्ड अ जनरल सोल्यूशन। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या मिलेगा आपको? पर्टिकुलर सोल्यूशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन, इस सोल्यूशन से बाय असाइनिंग पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्री कांस्टेंट, एग्जैक्ट differential equation. So today we'll start the very first topic, exact differential equation. So what is the exact differential equation? Can you tell me? Exact differential equation. Exact means what? एकदम वैसा का वैसा ही, बोलो। हाँ, कंप्लीट, पूरी तरह से, मतलब कि जैसा मैं हूँ सेम वैसे ही आप हो, तो मतलब क्या आप मेरी तरह से एकदम एग्जैक्ट हो, मेरे जैसे ही हो, ठीक है। तो मतलब जरा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये जनरल भाषा में भी हम इसको समझ सकते हैं, एग्जैक्ट मतलब एकदम सेम टू सेम, वैसे ही जरा भी इसमें डिफरेंट नहीं आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट। वैसे में मैथमेटिकल में भी है, लैंग्वेज में है। सो उसके लिए कंडीशन क्या है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैं लिखूंगा तो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, the necessary and sufficient condition necessary and sufficient condition for or differential equation m is the function of x and y, m dx plus n is also function of x y dy equal to 0. ये differential equation है। The necessary and sufficient condition for a differential equation m dx plus n dy equal to 0 is to be exact, is to be exact if we have the condition dou m by dou y equal to dou n by dou x। ओके, सो ये क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट होने के लिए ये इसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे कि दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, the solution of exact differential equation. And what is the solution of exact differential equation? The solution of exact differential equation is of the form, the solution of exact differential equation is of the form integration of m dx treating y constant by treating y का constant, ठीक है, and plus integration of n with respect to y and this equal to c। ओके, यहाँ पे treating as a what, the terms of
terms in n free from x, free from x मतलब क्या, इसमें y को कांस्टेंट रख के इंटीग्रेट करेंगे, फंक्शन m को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बाय ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, और n को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, n का ऐसा टर्म लेंगे जिसमें x नहीं होगा, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट करने के बाद इक्वल टू कांस्टेंट c पुट करेंगे, तो जो भी आएगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन किसका, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। चलिए मैं एक आपको प्रॉब्लम लेता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। सो दैट एग्जाम्पल नंबर 1, example number 1, so that y in bracket 1 plus 1 upon x plus cos y and dx plus ब्रैकेट में ex प्लस log x माइनस ex sin y dy and this equal to 0 is exact differential equation, ठीक है। सॉल्यूशन हमको क्या करना है, वी हैव टू शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो दिया रहेगा उसको हम लिखते हैं, आपको भी हमेशा वैसे ही करना है, y इंटू 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस cos y dx प्लस x प्लस log x माइनस x sin y एंड dy इक्वल टू 0। ये आपका गिवन है, गिवन यहाँ पे लिखोगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज गिवन। नाउ कंपेयरिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, comparing the given differential equation with standard form m x y dx plus n x y dy equal to 0, we get m आपको क्या मिलेगा, m ऑफ एक्स वाई, m ऑफ एक्स वाई देखो कंपेयर करेंगे तो dx इक्वल टू dx के हो जाएगा, और पहला वाला टर्म इक्वल टू पहले वाले टर्म के हो जाएगा, ठीक है। y 1 प्लस 1 अपॉन x एन प्लस cos y, ठीक है, और सेकेंड भी लिख देता हूँ, हाँ, एन एक्स कॉमा वाई इक्वल टू सेकेंड टर्म एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई, ठीक है, यही है ना। चलिए अभी क्या करेंगे, शो करेंगे कि एग्जैक्ट है कि नहीं। एग्जैक्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डो एम बाय डो वाई फाइंड करना पड़ेगा। तो एम को किससे डिफ्रेंशिएट करने पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। So differentiating m partially with respect to y. So dou m by dou y equal to y से करें, x तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे y से करेंगे तो y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये साइड में ही रहेगा, 1 अपॉन x एंड प्लस cos का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन होता है, cos का डेरिवेटिव
माइनस साइन वाई होता है, ठीक है। कॉमा लगा दो यहाँ पे। अभी एन के साथ आएंगे, एन को किससे डिफ्रेंशिएट करना है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। सो डिफ्रेंशिएटिंग एन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा। सर हम लोगों ने साइन y का लिया है डेरिवेटिव या सिर्फ साइन का, ऐसे क्या सिर्फ कॉस का लिया, मतलब कॉस y का लिया या कॉस सिर्फ कॉस का? भाई कॉस केवल अकेले नहीं होता है, उसके साथ एक्स वाई जेड हम कुछ तो रहता है ना, ठीक है। ये कॉस वाई साथ में है, कॉस केवल अकेले नहीं हाँ होता है। ओके ओके ओके। हाँ चलिए इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो यहाँ पे आएगा एक्स का करेंगे तो 1 आएगा, एंड प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 अपॉन एक्स होता है, ठीक है। एंड माइनस, अभी एक्स से कर रहे हैं तो साइन क्या है? कांस्टेंट ही होगा। हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा साइन वाई। अभी देखिए इसको हम इक्वेशन अगर 1 देंगे और इसको 2 डालेंगे, तो सपोज इसको मैं 1 दे दिया और इसको मैं 2 दे दिया, ठीक है। तो दोनों को देखो क्या बोला है, दोनों तो सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते हैं कि डो एम अपॉन डो वाई इक्वल टू डो एन अपॉन डो एक्स, ओके। देयरफॉर आप लिखोगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, therefore the given differential equation is exact, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कुछ परेशानी है? बोलो स्टूडेंट, बोलो। नो सर। नो सर। हाँ नेक्स्ट, चलिए सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। बार बार डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ही चैप्टर चल रहा है, तो केवल सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व ई रेस टू वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई रेस टू वाई साइन एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ओके। चलिए सॉल्यूशन में आप क्या करोगे? पहले आपको जो दिया वही लिखोगे। पहले लिखोगे आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करना है। ई रेस टू वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स एंड प्लस ई रेस टू वाई साइन एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, सो कंपेयरिंग this with m dx plus n dy equal to 0, we get क्या मिलेगा आपको? m इक्वल टू पहला वाला टर्म दैट इज व्हाट e रेस टू वाई प्लस 1 कॉस एक्स, और n क्या मिलेगा? n आपको मिलेगा e रेस टू वाई साइन एक्स, ठीक है। अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे। m को हम किससे डिफ्रेंशिएट करते थे? बोलो। m को किससे? y के साथ। y के साथ। आप लोग देखो एग्जाम में क्या मिस्टेक करते हो, m को आप x से करते हो और n को y से करते हो, तो वहां पे आपका मिस्टेक होता है। तो ये स्टेप जरा ध्यान रखने का, ठीक है। जो पहला वाला है, देखो याद रखने का तरीका, पहला वाले को y दूसरे वाले के साथ डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे वाले को फर्स्ट वाले के साथ। y से करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, तो e रेस टू वाई का e रेस टू वाई होगा, एंड प्लस कांस्टेंट टर्म 1 है, इसका 0 होता है, और cos x एज इट इज, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अगर मैं अच्छे से लिखना चाहूँगा
तो इसको कैसे लिखेंगे, ई रेस टू वाई कॉस वाई, इसको नंबर 1 डाल देंगे हम। अभी एन के बारे में आ जाइए, पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के साथ कीजिए। सो ई रेस टू वाई, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, अभी वाई कांस्टेंट, एक्स से करे तो वाई कांस्टेंट होगा, ठीक है, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस क्या मैं कर रहा हूँ, एक्स के साथ करें ना, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। पहले वाले में cos ये यहाँ x देखो, रहेगा। यहाँ पे वाई नहीं रहेगा, यहाँ पे एक्स रहेगा। ठीक है, वाई के साथ कर रहे हैं तो ई रेस टू वाई एज इट इज, बिकॉज डेरिवेटिव अभी वाई इज, सॉरी डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज सेम एंड कांस्टेंट टर्म 1 is 0। ये तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि वाई से कर रहे हैं, तो ये आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेस टू वाई कॉस वाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो आपका ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस होता है। अब बोलो नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 आप बोलोगे, 1 and 2 आपको क्या मिलेगा, डो एम बाय डो वाई इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स। देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, यहाँ तक तो आपको करना ही करना है। यहाँ पे मैंने तो इतने बोला था, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट आएगा तभी इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, देयरफॉर द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, देयरफॉर द हेलो सर। हाँ बोलो। सर अब वो डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वे वाला फिर से समझाओ ना। डेल्टा नहीं है भाई, ये डो है, इसको हाँ, बोलते हैं ठीक है। डो, पार्शियल डेरिवेटिव। अच्छा हाँ सर, तो डेल्टा हाँ, ऐसा सर, होता है, तो- डेल्टा हाँ, ऐसा सर। होता है। हाँ बोलो। अच्छा हाँ सर, वो फर्स्ट इक्वेशन 1 से फिर से समझाओ। देखो इसको, ये फंक्शन आपका y है, ठीक है, m क्या है आपका, e रेस टू वाई प्लस 1 कॉस एक्स। m को किससे डिफरेंशिएट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू y से। y से करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, ठीक है, इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम होता है, तो e रेस टू वाई सेम, ये y कांस्टेंट है, 0 हो गया, ब्रैकेट को ऐसे लगाए रखो, और एक कांस्टेंट है कॉस एक्स एज इट इज, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, e रेस टू वाई कॉस एक्स, पहला हो गया इक्वेशन। अब आइए यहाँ पे, इसको किससे डिफरेंशिएट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करना है, एक्स के करेंगे तो y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको मैंने ऐसे रखा, केवल साइन को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो आपको e रेस टू वाई कॉस एक्स मिला। तो दोनों इक्वेशन सेम है, हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 ये एग्जैक्ट हो गया। ओके, द जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ given differential equation is, what is the general solution, आपको ये फार्मूला लिखना है, treating y is constant, ये कांस्टेंट लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, CONST। ठीक है, यहाँ पे m dx प्लस इंटीग्रेशन terms in n free from x, terms of n free from x, या तो ऐसा लिखो terms in n free from x, यहाँ पे कितना लिखेंगे, n dy इक्वल टू c, where c is the arbitrary constant, c क्या है, arbitrary constant, therefore integration m क्या है आपका, m आपका a है, e रेस टू वाई प्लस 1 cos x और dx है, ठीक है, एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n आपका क्या है, e रेस टू वाई, n देखो n क्या बोला आपका, टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x, मतलब कि n का ऐसा टर्म लो जिसमें x नहीं हो,
ऐसा तो कोई टर्म ही नहीं है जिसमें x नहीं है, ये वाला एक ही टर्म है और उसमें x है, साइन x है, तो क्या होगा आपका, ये 0 होगा। ठीक है, हाँ, इक्वल टू सी। ये समझ में आपको, ये मीनिंग समझ में आया? टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x, मतलब n का ऐसा टर्म जिसमें x नहीं हो, इसमें तो एक ही टर्म है और उसमें x है, साइन x। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ऐसा कोई भी टर्म नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। चलिए अभी इसको इंटीग्रेट करो, इसको किससे इंटीग्रेट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। e रेस टू वाई प्लस 1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। cos x dx एंड प्लस ये वाला टर्म क्या होगा, 0 एन इक्वल टू सी। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos का कितना इंटीग्रेशन होता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो, साइन। तो e रेस टू वाई प्लस 1 cos का साइन x और इक्वल टू आपको सर sin वो मिलेगा। n में e रेस टू वाई साइन x है, तो e रेस टू वाई नहीं लिखेंगे हम लोग इसमें? नहीं, वो सब यहाँ पे मैंने क्या बताया अभी आपको, टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x हमको इंटीग्रेट करना है ना, तो वो एक ही नंबर, किसके लिमिट में, टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x, n का ऐसा टर्म लो जिसमें x नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी टर्म नहीं है ना यहाँ पे, इसमें x है ना, साइन x है, तो ऐसा कोई टर्म नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 0 लिखेंगे। बट सर So, e रेस टू which is- वाई में तो e रेस टू वाई में x नहीं है। कहाँ पे, अरे एक ही टर्म ये N फार्मूला याद e रखो, ये raised to देखो, y। ना, साइन x 0 तो एक ही था में। देखो देखो, ये फार्मूला आप याद रखो। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ओवर y, ट्रीटिंग y कांस्टेंट, यहाँ पे y कांस्टेंट है, जिसको बगल में ले लो, इससे काम नहीं है हमको, हमको x के साथ इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये पूरा टर्म बाहर हो गया, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है। ठीक है, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y, लेकिन क्या ट्रीट करके, ट्रीट हमको ये करना है कि टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x, n का ऐसा टर्म लो जिसमें x नहीं हो, लेकिन ऐसा कोई टर्म है क्या यहाँ पे, ऐसा कोई भी टर्म नहीं है, यहाँ पे एक ही टर्म है और उसमें x है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये 0 आया और इक्वल टू कांस्टेंट। सो ये आपको क्या मिला, e रेस टू वाई प्लस 1 इंटू साइन एक्स, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, which is required solution of given differential equation। ठीक है,